In today's session, we'll be discussing the numericals from chapter force. So, question is a non-uniform beam of weight 120 Newton pivoted at one end is shown in the diagram below. Calculate the value of F to keep the beam in equilibrium. So let's draw the diagram first. This is the beam and it is shown that this is center of gravity CG and weight is acting at center of gravity. Weight is 120 Newton. This is point O, this is point, and this whole distance is 0.20 meter, and this whole distance is 0.80 meter, and a force is acting at this end. In the question, they are saying that non-uniform beam of weight 120 Newton is pivoted at one end and calculate the value of F to keep the beam in equilibrium. So जब भी हमें समझ में आता है कि ये जो बीम है ये बैलेंस्ड है या इक्विलिब्रियम है तो हम हमेशा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अप्लाई कर सकते हैं. So according to the principle of moment, according to principle of moment, sum of anti-clockwise movements is equal to sum of clockwise movements. तो यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि कितने फोर्सेस हैं. दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी. कितने फोर्सेस हैं जो इस बीम पे एक्ट कर रहे हैं. सो एक तो ये फोर्स है वेट 120 न्यूटन और दूसरा जो फोर्स है एफ जो हम अप्लाई कर रहे हैं इस बीम को बैलेंस करने के लिए. देयर आर टू फोर्सेस. तो अगर फोर्सेस टू हैं तो मूवमेंट्स भी टू होंगे. अब ये जो 120 न्यूटन का फोर्स है ये कौन सा मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज. तो इसके लिए हमें देखना होगा कि पाइवोटेड पॉइंट कहाँ है या पॉइंट ऑफ रोटेशन कहाँ पर है. तो दिस इज द पॉइंट ऑफ रोटेशन. तो ये जो फोर्स है हम देख सकते हैं कि दिस फोर्स इज प्रोड्यूसिंग अ क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड दिस फोर्स एफ अबाउट ओ दिस इज प्रोड्यूसिंग एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स एफ. और मोमेंट क्या होता है, मूवमेंट ऑफ फोर्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मूवमेंट ऑफ फोर्स. सो दिस इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके किसके बीच की. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को यहाँ पे अच्छे से समझना पड़ेगा. ये किसके किसके बीच की डिस्टेंस है. तो ये है डिस्टेंस बिटवीन line of action of force, line of action of force, and either you say axis of rotation, axis of rotation, or you can say point of rotation. तो अगर F है तो F के लिए this is the line of action of force and this is the point of rotation or you can say axis of rotation and this is the perpendicular distance. So यहाँ पे sum of anti-clockwise movement में मैं क्या लिखूंगा, F into 0.80. ये line of action of force and this is the point of rotation. यहाँ पे सिर्फ एक ही फोर्स है तो as such कुछ sum की जरूरत है नहीं. And sum of clockwise movement तो 120 Newton is producing clockwise movement. तो force 120 Newton into perpendicular distance. This distance is given as 0.20 meter. So 0.20. So capital F is equal to 120 into 0.20 and whole divided by 0.80. इसको हम सॉल्व करेंगे. सो 2 4 टाइम्स एंड 4 3. सो दिस इज 30 न्यूटन. सो मुझे कितना फोर्स चाहिए इस बीम को बैलेंस करने के लिए. द आंसर इज 30 न्यूटन. A uniform meter rule AB pivoted at its end A
at a zero mark and supported at other end B by a spring balance when a weight of 40 kg is suspended at its 40 centimeter mark. This rule stays horizontal. Find the reading of the spring balance when the rule is of negligible mass and mass of 20 kg. तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेंगे. यू ऑल्सो हैव टू डायग्राम एज अ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. आपको अपनी आंसर शीट में ये डायग्राम ड्रॉ करना है. एंड दिस इज पॉइंट ऑफ रोटेशन, पिवोटेड पॉइंट, जिसको हम ए कह सकते हैं. एंड दिस इज पॉइंट बी, और इस पॉइंट बी पे स्प्रिंग कनेक्टेड है लाइक दिस, एंड दिस इज स्केल. देन वी हैव दिस जीरो मार्क एंड दिस इज 100 सेंटीमीटर मार्क. और जो 40 सेंटीमीटर मार्क है, दिस इज 40 सेंटीमीटर मार्क, इस पे एक वेट हैंग हो रहा है. दिस इज 40 kgf. So then they are asking कि find the reading of the spring balance when the rule is of negligible mass and also uniformity rule suspended supported this. So it is written that this rule stays horizontal. This is extremely important statement because हम इस पे प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट तब तक नहीं लगा सकते जब तक ये स्केल या ये जो रूल है ये बैलेंस नहीं है या हॉरिजॉन्टल नहीं है. तो क्वेश्चन में उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कन्वे किया है कि दिस रूल स्टेज हॉरिजॉन्टल. एंड दो कंडीशंस हैं या दो क्वेश्चंस हैं इसमें. जब इस रूल का जो वेट है वो नेग्लिजिबल है, तो फर्स्ट कंडीशन इज नेग्लिजिबल मास. तो अगर इसका मास नेग्लिजिबल है और इस पर मैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट लगाता हूँ बाय प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, अगर मैं इस पर प्रिंसिपल, तो सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स. अब देखना ये कि एंटी क्लॉकवाइज फोर्स कौन प्रोड्यूस करे. तो फोर्सेस पहले आइडेंटिफाई करते हैं. एक तो ये फोर्स है 40 kgf, और दूसरा एक फोर्स यहाँ पर भी लग रहा है क्योंकि स्प्रिंग इससे कनेक्टेड है ना, तो एक फोर्स यहाँ पर भी लग रहा है. तो ये जो फोर्स है ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, और ये जो फोर्स है ये क्लॉकवाइज मूवमेंट. हमेशा हम फोर्स से पॉइंट ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन में मूव करेंगे. तो दिस फोर्स इज प्रोड्यूसिंग क्लॉकवाइज मूवमेंट. सो हियर वी कैन राइट, इसको मैं एफ ले लेता हूँ, यहाँ पे फोर्स एफ एक्ट कर रहा है. एफ इंटू इस फोर्स की, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की पॉइंट ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज 100 सेंटीमीटर. दिस इज 100 इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट. सो 40 kgf, 40 kgf into this distance is what? This is 40 centimeter. Yes, this is 40 centimeter. आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 40 into 40 divided by 100, and the final answer is 16 kgf. So 16 kgf will be the reading of this spring. ये स्प्रिंग जो है इस एंड पे 16 kgf का फोर्स अप्लाई कर रही है. kgf is the gravitational unit of force. Next sub part is the mass of rule is 20 kg. So mass of rule is 20 kg. So here you can very easily conclude that this is 20 kgf. Weight of rule is 20 kgf. तो जो वेट होता है ना रूल का, वो कहाँ पे एक्ट करता है? वो इसके मिड पॉइंट पे एक्ट करता है. यानी कि ये 50 सेंटीमीटर पे इसका एक वेट एक्ट करेगा. दिस इज 40 सेंटीमीटर एंड दिस इज 50 सेंटीमीटर. तो 50 सेंटीमीटर पे वेट एक्ट करेगा एंड दिस वेट इज इक्विवेलेंट टू 20 kgf. अब इस पे हम फिर से प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट लगाएंगे क्योंकि वंस अगेन दिस रॉड इज इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन. So sum of anti-clockwise movement. So this force is producing anti-clockwise movement. We can easily write F into 100. And these two forces, one is the weight of the body, another is 40 kg of weight. These two forces are producing clockwise movement. तो यहाँ पे हमें लिखना चाहिए 40 into 40, just because of this 40, and there is a distance 40, plus दूसरा जो force है that is 20 kgf. So 20 into
और ये जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज 50 लाइक दिस। सो अभी आप f को कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इसको पहले इजी कर लो, 40 इंटू 40 प्लस 20 इंटू 50 एंड डिवाइडेड बाई 100। तो इसको आप 100 से डिवाइड करोगे तो दिस इज गोना बी 16 एंड प्लस 10 एंड द आंसर इज 26 kg लाइक दिस। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को, अ यूनिफॉर्म मीटर रूल रेस्ट्स हॉरिजॉन्टली ऑन अ नाइफ एज at the 60 centimeter mark when a mass of 10 gram is suspended from one end. Draw a diagram of the arrangement. So drawing the diagram of the arrangement is the part of the question. There is no diagram given in this particular question. तो हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया, इसमें कह रहे हैं मीटर रूल। तो जब वो मीटर रूल कहते हैं तो आपको समझना चाहिए कि ये 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर इसकी लेंथ है। कभी कभी वो कहते हैं हाफ मीटर रूल, आपको समझना चाहिए कि द लेंथ ऑफ द रूल इज 50 सेंटीमीटर। इस पॉइंट को आप ए कह सकते हो, इस पॉइंट को आप बी कह सकते हो। एंड 60 सेंटीमीटर पे देयर इज अ फल्क्रम, सो दिस इज 60 सेंटीमीटर। फल्क्रम मतलब पॉइंट ऑफ रोटेशन। एंड अ मास ऑफ 10 ग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड। तो देखो अगर ये जो रॉड है इसको 60 सेंटीमीटर पे इसका फल्क्रम है, तो इस रॉड का जो वेट है वो कहाँ पे एक्ट करेगा, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। और इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इफ देयर इज अ यूनिफॉर्म रॉड देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज ऑलवेज एक्टिंग एट अ मिड पॉइंट, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी 50 सेंटीमीटर पे होगी और वेट यहाँ पे ही एक्ट करेगा। दिस इज वेट ऑफ द रूल। तो अगर वेट यहाँ पे एक्ट कर रहा है तो क्या ये जो वेट है इस रूल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, बिकॉज दिस इज द पॉइंट ऑफ रोटेशन। तो क्या ये इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो अगर हमें 10 ग्राम का मास का एक ब्लॉक दिया जा रहा है जिसको मुझे हैंग करना है इस रॉड को बैलेंस करने के लिए, तो उसको मुझे कहाँ पे सस्पेंड करना चाहिए। तो मुझे डेफिनेटली इस पार्ट पे तो मैं सस्पेंड करूंगा नहीं, क्योंकि एनीवेज दिस इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं उसको सस्पेंड करूंगा यहाँ पे इस एंड पे। तो दिस इज 10 ग्राम और वी कैन ऑल्सो से 10 gf in terms of weight. 10 gram is the mass and 10 gf is the gravitational unit of weight, that is gf. So this is 10 gf is the weight. Then they are saying at which end must this mass be suspended. So yeah, we already answered. First part is already answered. आप 100 सेंटीमीटर वाले एंड पे इसको सस्पेंड कीजिए, बी पॉइंट पे इसको सस्पेंड कीजिए। सेकेंड सब पार्ट इज व्हाट इज द मास ऑफ द रूल, इसका मास क्या है। तो देखो इस पे आप प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट अप्लाई कर सकते हो, बाय प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। क्यों, क्योंकि ये जो रॉड है ये बैलेंस्ड है एज पर गिवन क्वेश्चन। क्योंकि मैंने 10 ग्राम जो हैंग किया है यहाँ पे वो किस पर्पज के लिए किया है कि ये बैलेंस हो जाए, तो इसलिए मैं यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट अप्लाई कर सकता हूँ। एंड सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, सो सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल एंड क्लॉकवाइज के लिए दिस 10 gf force is responsible. So I am directly writing here, or maybe okay, let me write sum of anti-clockwise movements is equal to sum of clockwise movements. So यहाँ पे anti-clockwise के लिए I can use W into what is this distance? 50 से 60 सेंटीमीटर के बीच की डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर होगी, दिस इज 10 सेंटीमीटर एंड दिस इज इक्वल टू 10 एंड व्हाट इज दिस 60 से 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कितनी होगी 40 सेंटीमीटर। सो W इज इक्वल टू 40 kgf, यानी इस रॉड का जो वेट है या इस रूल का जो वेट है दैट इज 40 kgf, सॉरी 40 gf नॉट kgf, दिस इज 40 gf। और अगर मुझे मास बताना होगा तो मैं कह सकता हूँ 40 ग्राम, लाइक दिस 40 ग्राम इज द मास। So they are asking mass only, not weight. So remember, you are not supposed to write the answer in gravitational unit of weight. You are supposed to write the answer in gram. And the third sub part they are asking, the 10 gram mass is now shifted to 90 centimeter mark. Okay. So here we have to change the diagram little bit. तो यहाँ पे मुझे दूसरा डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए, बट आई विल मेक द चेंज इन दिस डायग्राम इटसेल्फ। तो अभी ये जो 10 ग्राम है
इस 10 ग्राम को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है. दिस इज 10 ग्राम और maybe we can say 10 GF. दिस इज 90 सेंटीमीटर और इसका वेट जस्ट नाउ वी कैलकुलेटेड, दिस इज 40 kgf. So now they are asking in which direction must the knife edge be shifted to make the rule horizontal again. तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर इसका आंसर आपको क्लैरिटी के साथ देना है तो सबसे पहले इसमें आप चेक करो कि इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन व्हाट इज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स. सो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स दिस इज इक्वल टू 40 into 10. This force is producing the anti-clockwise moment. So this is 400. Sorry, this is GF. So GF centimeter. And then clockwise movement is equal to 10 GF into what is the distance between 60 centimeter and 90 centimeter, point of rotation and the line of action of force. This is 30. So the answer is 300 GF centimeter. तो we can clearly say the anti-clockwise movement is more. इसका मतलब ये जो रॉड है ये इस डायरेक्शन में बेंड होगी. रॉड इस डायरेक्शन में बेंड होगी तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ज़्यादा है और क्लॉकवाइज मूवमेंट कम है. इसका मतलब मुझे क्लॉकवाइज मूवमेंट इंक्रीज करना है. यानी मुझे ये क्लॉकवाइज मूवमेंट अगर मैं इंक्रीज कर दूं तो क्लॉकवाइज मूवमेंट इंक्रीज करके मैं इसको बैलेंस कर सकता हूँ. बट रेस्ट्रिक्शन इज कि आप 10 GF को मूव नहीं करा सकते और W इज इक्वल टू 40 GF इज द वेट. वो तो CG पे यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करेगा. हमें जो फ्रीडम दी गई है वो है कि फल्क्रम को मूव कराना है. तो फल्क्रम को अगर आप इस डायरेक्शन में मूव कराओगे तो 90 और 60 के बीच में जो डिस्टेंस है 30, तो 30 ये तो और कम हो जाएगा. तो इसलिए आप इस फल्क्रम को इधर मत मूव कराओ, आप इस फल्क्रम को इस डायरेक्शन में मूव कराओ. और अगर आप फल्क्रम को इस डायरेक्शन में मूव करोगे तो ये जो डिस्टेंस है पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड द 10 GF फोर्स ये इंक्रीज हो जाएगा. तो जब ये 30 डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड दिस फोर्स विल बी इंक्रीजिंग तो क्लॉकवाइज मूवमेंट विल बी इंक्रीजिंग एंड दिस इज हाउ. एंड देन एट द सेम टाइम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कम भी होगा. तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कम होगा एंड क्लॉकवाइज मूवमेंट ज़्यादा होगा तो एक पॉइंट पे दोनों इक्वल हो जाएंगे. सो आंसर इज दैट फल्क्रम शुड बी मूविंग टुवर्ड्स द जीरो मार्क ऑफ द रूल. अच्छा इस क्वेश्चन में वो ये नहीं कह रहे हैं कि कितना मूव कराना होगा, सिर्फ उन्होंने डायरेक्शन पूछा है. तो यू जस्ट कैन राइट द फल्क्रम शुड बी मूविंग टुवर्ड्स द जीरो मार्क ऑफ द स्केल. इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग कि फल्क्रम को कितना मूव कराना होगा. तो उस केस में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे तो ये भी हम देख लेते हैं. सो वंस अगेन आई विल ड्रॉ द डायग्राम. दिस इज जीरो मार्क, this is 100 centimeter mark and this is a fulcrum at 60 centimeter and here is the weight which is acting at 50 centimeter and weight is 40 GF and 10 GF is the weight which is acting at 90 centimeter. तो एक चीज़ तो क्लियर है कि जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है इस पर्टिकुलर कंडीशन में वो क्लॉकवाइज मूवमेंट से ज़्यादा है. तो मुझे क्लॉकवाइज मूवमेंट को इंक्रीज करने के लिए इस फल्क्रम को वी हैव टू मूव दिस फल्क्रम अवे फ्रॉम दिस 10 GF फोर्स. तो फॉर एग्जांपल हम इसको क्या मानते हैं, इस फल्क्रम को मैंने, दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ दिस फल्क्रम, दिस इज द न्यू पोजीशन. मैंने इस फल्क्रम को x डिस्टेंस मूव कर दिया इन सच अ वे कि ये जो रॉड है या जो रूल है ये अभी बैलेंस हो चुका है. तो अगर ये बैलेंस हो गया तो मैं इसमें प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट लगा सकता हूँ. बाय प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट यहाँ पे हम ये कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना मूव कराना होगा. तो मैंने x सेंटीमीटर मूव कराया, द डिस्टेंस इज x सेंटीमीटर, दिस डिस्टेंस इज x सेंटीमीटर. सो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट अगर मैं अप्लाई करूँगा तो व्हाट इज दिस डिस्टेंस, अभी ये डिस्टेंस कितनी है, anti-clockwise is equal to clockwise. I'm writing in short to make it fast. So this is 40 GF और इसकी ये डिस्टेंस बताओ, ये डिस्टेंस कितनी है. तो देखो ये तो x है, दिस मच डिस्टेंस इज x. अब ये x यहाँ से शिफ्ट मीटर माइनस x. I hope everyone is able to understand. 50 and 60 centimeter. The distance between 50 to 60 centimeter is 10.
और दिस मच डिस्टेंस इज x, तो 10 में से अगर मैं x माइनस करूंगा तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगी, तो दिस डिस्टेंस इज 10 माइनस x एंड दिस इज इक्वल टू क्लॉकवाइज डिस्टेंस। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट, सो 10 इंटू, अभी ये देखो ये डिस्टेंस कितनी थी, ये डिस्टेंस 30 थी, लेकिन अभी ये मूव कर गया ना x से, तो ये हो गई 30 प्लस x। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि कितना सेंटीमीटर मुझे मूव करना है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो दिस इज 4, 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 से मैंने डिवाइड किया है बोथ द साइड, दिस इज 30 प्लस एक्स, सो दिस इज गोना बी 40 माइनस 4x इज इक्वल टू 30 प्लस एक्स एंड this is gonna be 10, 40 minus 30 is equal to 10 is equal to 5x, तो x is equal to 2 सेंटीमीटर। अगर हम इसको 2 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द जीरो मार्क मूव करें तो फिर ये रूल बैलेंस हो जाएगा, यानी कि हमें अभी फलक्रम को या एज ऑफ द नाइफ को रखना पड़ेगा 58 सेंटीमीटर पे, 60 से 2 सेंटीमीटर पहले लेके आना पड़ेगा 58 सेंटीमीटर पे। सो एज ऑफ नाइफ must be placed at 58 centimeter mark. So this is something which is not asked in the question, but I told so that कि अगर वो पूछा भी जाता है कि कितना हम इसको मूव करेंगे तो आप उसको भी कैलकुलेट कर पाओ। A uniform meter rule placed on a fulcrum at its midpoint O and having weight 40 gf at 10 centimeter mark and a weight of 20 gf at 90 centimeter mark. So the diagram is given in the question, diagram is given, and this is 0 centimeter mark, this is 100 centimeter mark, और जो ये 10 centimeter mark है उस पर एक weight है, this weight is 40 gf एंड 50 सेंटीमीटर मार्क पे पॉइंट ऑफ रोटेशन, यहाँ पे फलक्रम है 50 सेंटीमीटर पे, एंड 90 सेंटीमीटर मार्क जो है दिस इज 90 सेंटीमीटर मार्क, यहाँ पे है 20 GF, तो दिस इज 20 GF। नाउ दे आर सेइंग इज द मीटर रूल इन इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हमें यही पता लगाना है कि क्या ये इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में पता लगाने के लिए आप कभी भी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स अप्लाई नहीं करोगे, आप अलग अलग कैलकुलेट करोगे। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स, तो ये बताइए कितना है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के लिए, विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल, तो दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल, दिस इज द फोर्स एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ रोटेशन, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। सो 40 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, what is the perpendicular distance, 40 centimeter, 10 to 50, this is 40, so we have 1600 gf centimeter. Now let's calculate clockwise movement. So clockwise movement will be, this force is responsible, so force value is 20, magnitude of force is 20, and the distance between 50 and 90, once again this is 40, so the answer is 800 GF सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज नॉट इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो ये जो रॉड है ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। देन दे आर फर्दर आस्किंग इफ नॉट हाउ विल द रूल टर्न, मतलब इसकी जो रोटेशन की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो जो मूवमेंट ज्यादा है उसकी डायरेक्शन में ये टर्न करेगा, तो द आंसर इज anti-clockwise. This rule is gonna turn in anti-clockwise direction. Next, they are asking, how can the rule be brought in equilibrium by using an additional weight of 40 GF? तो 40 GF को उन्होंने मुझे एडिशनल वेट दिया है और कहा है कि इसको आप बैलेंस करो। तो 40 GF का जो वेट है वो डेफिनेटली मैं यहाँ तो हैंग नहीं करूंगा इस पार्ट में, क्योंकि वैसे भी ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न हो रहा है। तो वेयर आई एम गोना हैंग इट, आई विल बी हैंगिंग ऑन दिस पार्ट ऑफ द रूल। तो अब इस पार्ट पे भी मैं कहाँ हैंग करूंगा, तो मैं, मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं है, वही तो मुझे कैलकुलेट करना है, तो आप यहाँ पे हैंग कर दो, यहाँ पे आप 40 GF का हैंग कर दो, और ये मान करके अगर अपने इस पॉइंट पे, जो कि मुझे पता नहीं है,
इस पॉइंट पे अगर मैंने हैंग किया तो ये रॉड अभी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, यानी ये बैलेंस हो जाएगी। तो इस पॉइंट को आप सेंटर से या फिर 50 सेंटीमीटर मार्क से x डिस्टेंस ले लो और फिर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये जो x की वैल्यू है वो कितनी होगी। तो देखो अभी जो रॉड है ना ये अभी बैलेंस हो चुकी है, तो हम यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अप्लाई कर सकते हैं। बाय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, सो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अप्लाई करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स के लिए कौन से रिस्पॉन्सिबल है? सिर्फ एक ही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, विच इज दिस 40 GF। सो 40 इंटू एंड द डिस्टेंस is 40. The distance between point of rotation and 40 GF. Force is 40 centimeter, and this is 40 GF into this distance is x plus anti-clockwise movement is also going to be produced by this 20 GF force. So this is 20 into and this distance is anyways 40, तो हमें पहले से पता है। तो अभी इसको मुझे सॉल्व करना है। तो देखो इसको मुझे सॉल्व करना है तो इसमें सब कुछ मल्टीप्लाई करके वो सब नहीं करेंगे हम। इसमें क्या करेंगे, यहाँ भी 40 है, यहाँ भी 40 है और यहाँ भी 40 है, तो 40 से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाई 40 इन LHS एंड RHS। तो हमारे पास क्या बचेगा, 40 इज इक्वल टू एक्स प्लस 20, तो x इज इक्वल टू वॉट, 20 सेंटीमीटर। सो इस तरह से हम अपने कैलकुलेशन रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं। सो दिस डिस्टेंस शुड बी 20 सेंटीमीटर। तो आप लिख सकते हो या यू मस्ट राइट कि 40 GF वेट को हमें 50 प्लस 20 ना 70 सेंटीमीटर मार्क पे हैंग करना होगा। एंड दिस आंसर यू हैव टू राइट प्रॉपरली। आपको ये पूरा आंसर लिखना होगा कि डेट 40 GF weight should be suspended at 70 centimeter mark, like this. A wheel of diameter 2 meters is shown in the figure. So there is a wheel और इस wheel का जो diameter है this is 2 meter, okay, means radius is 1 meter. If it is needed we'll use. A force F is equal to 2 Newton is applied at B. ये पॉइंट B है और इस पे 2 न्यूटन का फोर्स हमने अप्लाई किया, ओके, इन द डायरेक्शन शोन इन द फिगर। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट सेंटर O। तो ये सेंटर O है, इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करना है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स दिस इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये फोर्स है एंड दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन और एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नथिंग बट द रेडियस, डायमीटर 2 मीटर है, सो रेडियस इज 1 मीटर। सो फोर्स इज 2 न्यूटन इंटू 1 मीटर, सो आंसर इज 2 न्यूटन मीटर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, ये मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट O. Then the second part, the point A के अबाउट, यानी दिस इज द पॉइंट A, इस पॉइंट के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करना है। सो मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट point A, this is equal to force into perpendicular distance, force is 2 Newton only, into perpendicular distance, अभी perpendicular distance आपकी ये diameter हो जाएगी, diameter is 2 meters and the answer is 4 Newton meter. So these are some of the important questions. You please learn it how to solve and practice it. Thank you.